Hi everyone. Welcome to a very exciting session today. We've been talking a lot about Gen Z, right? And how Gen Z behave, how they react in a particular way. तो हमने सोचा कि यार ये हमेशा जेन जी के अगेंस्ट क्यों बातें की जाए, राइट? और Gen Z को कब मौका मिलेगा कि whatever they have to say, they should also get a platform, right, to express themselves. And that's exactly why we have three representatives of Gen Z, the generation which is probably one of the most happening, one of the most criticized generations so far. So we have three Gen Z representatives. We have Sia, Sarvesh, and Samiksha. What's the name? Samiksha. So you want to just quickly introduce yourselves in one or two lines? Sure. Yeah, go on. Sia, you first. Okay, hi, I'm Sia. I just graduated this year and right now I'm working as an equity research associate at PSB. Bapre. Hi, I'm Sarvesh Dange. Actually, I've completed my bachelor's degree right now in fintech. I'm working with my father, helping him out in his business in pharma market. God bless his father. This is Samiksha Dange and I'm currently pursuing my degree from School of Fashion Technology. Awesome. So we have one creative person, fashion technology, one business mind, and one finance. है ना एकदम अलग टाइप के Gen Z मिले हैं मुझे. God bless. Let's see how it goes, right? So even before we start, I just want to tell you कि Gen X is Gen X. वो तुम लोगों के बाप है. ओके तो इमेजिन एक जेन एक्स के लिए तीन तीन जेन जी की जरूरत पड़ी. So that itself says, okay? So please understand and respect the age. So even before we start, हाँ मुझे ना एक हमेशा का अपना चलते ही रहता है. आई थिंक दिस इज व्हाट वी कीप टॉकिंग अबाउट कि लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हो गई है एंड स्पेशली द स्लैंग एंड द स्लैंग दैट यू गाइज यूज. ओके सो हमारे ज़माने में हम कुछ अलग स्लैंग यूज़ करते थे. अभी आप लोग कुछ अलग ही वर्ड्स यूज़ करते हो यार. जैसे टी, हम चाय से पीते थे. आप लोग क्या करते हो चाय के साथ? What do you say? Spill the tea. You spill the tea मतलब क्या? Yeah. मतलब it's just spilling or sharing a gossip. Actually, but honestly मुझे ये अच्छा लगता है. पता है, I use this. I also use it in my conversation. So let's have some tea. और riz. Riz is Riz. this is a word I like. क्या है riz? Riz basically, It means charisma. It's a short form for Yeah, charisma. yeah. It's charisma. Riz. I like it. I use that as well. और एक word मुझे पसंद है which is mid. यूज किया है कभी? तुम लोग करते हो क्या ये वर्ड यूज? yes, every day. एवरी डे. सो आई डोंट यूज एवरी डे बट कभी कभी चांस मिला तो जस्ट टू शो यू नो दैट आई एम इन टच विद द करंट जनरेशन में यूज कर लेता हूँ. तुम लोग करते हो ना? Yes. Yes. Mid basically means not too good, not too bad. तो मीडियम टाइप, मीडियम मीडियोकर Yes. टाइप, राइट? Mid. अच्छे वर्ड है ये. दो तीन तो मुझे पसंद है. और कुछ है क्या तुम्हारे दिमाग में जो मैं नहीं यूज करता? मे बी यू गाइज कैन एनलाइटन मी. Like slay. स्ले. हाँ स्ले आजकल बहुत चल रहा है. स्लेड इट, राइट? किल्ड. किल तो आई थिंक मेरे ज़माने में भी था. किल्ड इज Lit नॉट है. लिट. Lit. हाँ लिट भी बाद में आया. बट आई थिंक आई स्टिल न्यू दोज वर्ड्स. बट ये वर्ड्स तो बिल्कुल ही नए थे मेरे लिए. बट माइंड यू तुम्हारे आगे की जो जनरेशन है ना, दे विल हैव देयर ओन They have slang a- and own yeah, vocab, brain right? Yeah, rot. So yeah, you guys will feel a little bit older when they start speaking. So just be mindful. तुम लोगों का भी टाइम Just आएगा. how you are feeling. Just like how you are feeling right now. Chill, okay? Chill. This is not age. This is experience. Oh. Okay? Yeah. So just relax. Yeah. We'll say the same words at that time. Exactly. So my experience will be useful for you. Good. तुम लोगों को कुछ लगता है क्या जेन एक्स के बारे में? और हम लोग परफेक्ट तो वैसे लगते ही है मुझे. बट यू गाइज हाँ, ऑल्सो बिलीव लगता दैट? है. Yes, This yes, is yes. what I think is one main topic when it comes to Gen X कि बहुत opinionated रहता है कि you know Gen Z तो ऐसे ही होते हैं, Gen Z वैसे ही होते हैं, नहीं ये तो Gen Z का trait ही है, ऐसे ही करेंगे ये बच्चे. So I feel that's Yeah, I yeah. think- यू ऑल्सो अग्री? Yes. तुम दोनों को भी लगता है हम लोग ओपिनियनेटेड है? हाँ. yeah. यार I think there might be some truth in that. Okay, I'm not agreeing 100%, but I think I'll give it to you. है थोड़ा सा ओपिनियन हमारा बन गया. But that's also because we've lived longer, right? तो हम लोग अगर 50 साल जी चुके हैं तो we've had so many experiences and you know so many things that we've learned कि एक अपने आप ओपिनियन बन ही जाते हैं कुछ चीज़ों में. And I think I'll give it to you. We have become a little opinionated. So maybe it's time for us also to reflect कि इतना ज़्यादा ओपिनियनेटेड रहना
अच्छी बात नहीं, वी बात नीड टू नहीं, गिव यू yes, yes, yes. बेनिफिट ऑफ डाउट, राइट? क्योंकि अलग अलग लोग अलग बिहेव कर सकते हैं. हाँ, यू आर सेइंग? एंड इन कॉन्ट्ररी आई फील जेन जी ऐसे बहुत ओपन माइंडेड रहते हैं इन लाइक मतलब जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है एंड यू आर फर्म ऑन इट, हाँ. वी आर लाइक हाँ इट्स ओके, इट्स अ पर्सन, उनके कुछ बिलीव्स होंगे. आई फील वी आर ओपन माइंडेड लाइक दैट. Open mindedness, I think I'll give it to you again because I've seen some Gen Zs of your age. Generally they don't find and form an opinion very easily. Mhm. So generally I think they are open minded, they give Yeah. you a benefit of doubt and they will not immediately judge you. आपको थोड़ा time दे देंगे and they won't label you immediately, I think. जो हमारी जनरेशन थोड़ी करती है. एंड एज आई सेड, यू नो, कि हम लोगों ने देखे इतने लोग कि अपने आप ओपिनियन बन चुके हैं अभी. सो मे बी सम ऑफ अस हैव बिकम अ बिट मोर रिजिड compared to the others. So I think you have a point. I'm not completely writing it off. You do have a point. लेकिन what about distractions, guys? तुम लोग इतने distracted क्यों रहते हो हमेशा? Just because कोई of भी एक this- चीज में फोकस नहीं करोगे? I कोई- feel that just because of this technology around. Okay. I mean हम Is it just or technology is a part of it? Yeah. हाँ. We have many things around us. Yeah. Okay. So we have to multitask. एंड द थिंग इज हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो सबके पास है. सो हाँ. इट्स लाइक वी नीड टू पे अटेंशन टू मैक्सिमम थिंग एट अ टाइम. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम क्विकली चीज़ों को एनालाइज करके मूव ऑन करें, इन माई ओपिनियन. Basically, it is a competition. You have to compete to others, na? Okay. So I buy your point. So technology तो ठीक है, मतलब we've also seen technology. हम लेकिन हमारे सामने टेक्नोलॉजी ग्रो हुई है, बट इन योर केस टेक्नोलॉजी के साथ आप या It was easily आपके साथ available. या टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी और फिर आप आ गए, राइट? Right. So I think your exposure to technology is far more compared to ours, which I agree. And when it comes to technology, I think the social media part as well, right? Yeah. तुम लोग तो literally you're consuming social media, you're living on social media. So that could be one of the reasons for distractions. I agree. Or you were saying something about competing and things being available to everyone. वो क्या है मतलब? I just want to understand it a bit better. बेसिकली इज लाइक टेक्नोलॉजी आपके टाइम में आई फील वाज अ प्रिविलेज, राइट? कि Yeah. मतलब इस लाइक Right. यू आर एबल टू अफोर्ड इट इज अ बिग डील. Hmm. बट अभी के लिए इट्स लाइक एवरीवन हैज इट, एवरीवन हैज द प्रिविलेज टू यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट. Right. तो सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास Yeah. इंटरनेट है, सबके पास एवरीवन अच्छा हैज स्मार्टफोन. इंफॉर्मेशन ऑन अ टच, ठीक जो है. बेसिकली सबके लिए हो गया अभी. इट्स इजीली अवेलेबल टू एवरीवन एंड Right. उस इसमें जब compete करना है, कंपटीशन तो है ही Right. लोगों के साथ, खुद के साथ, whatever. Right. So I feel the more you're able और to AI give- भी सबके लिए इक्वली अवेलेबल है, Yeah. है ना? कोई भी anything you can just go out, type and you To get gain all the information, information. yes, 100%. So this point is valid actually, that you know everything is available to everyone. So where is the differentiation? So we have है to ना? deal with We have to compete. everything. So We have to competition compete, बढ़ गई है yeah, क्योंकि yeah, सबको सब मिल रहा है. Yes. तो how can you create your own differentiation Yeah. is a challenge. But How can you stand out from others? right, so how do you stand Basically. out from the crowd? Yeah, yeah, That's a yeah. challenge. तो is this a cause of distraction? इसकी वजह से आपको लगता है क्या कि I यार think- ये थोड़ा करने जाओ, अरे वो हो रहा है, वो हो रहा है. I don't think ये distraction नेम करना चाहिए. It's like multitasking कि हमें Oh. बहुत सारी चीजें साथ में करनी है. So क्या you बात. know एक चीज को पूरा attention नहीं दे सकते. थोड़ा से diversify करना पड़ता Okay. है. So you want to do too much in too little time probably. इसलिए आप Yeah, एक चीज पे To ज्यादा stay in देर the competition. ज्यादा Yeah, देर basically. ध्यान नहीं सकते, राइट? हमारे वक्त में मतलब एक चीज आई मीन इन दैट सेंस इफ यू लुक एट इवन जॉब्स, हमारे वक्त पे एक जगह पे लोग काम करते जा रहे 20 साल 25 साल, दे आर नॉट इवन स्विचिंग जॉब सो इजीली. एक ही जगह चिपके हुए हैं, राइट? बट आई थिंक इन योर केस दैट्स नॉट हैपनिंग एंड दैट विल नॉट हैपन गोइंग फॉरवर्ड. सो या दैट इज वन थिंग कि you think you have so much to do that you can't focus on one thing for too long. Yeah. है ना? बहुत होता है ना ये करूँ वो करूँ. Yeah, makes sense. But is it so that because of that your attention span is also slightly shorter compared to Yes. Gen X or even millennials for that sense? What is your comment on the attention span? Take a while. This is not a very easy question to answer, but I have seen कि अगर आप कुछ चीज़ देख रहे हो या सुन रहे हो, लेक्चर हम लोग 45 मिनट सुनते थे हमारे टीचर्स का, आजकल मुश्किल है, लोग नहीं सुनते इतने आसानी से.
सो अटेंशन स्पैन तो कम हो रहा है, दैट इज रियल, दिस इज एंड इट्स प्रूवन. तो क्यों हो रहा होगा? इफ यू कैन जस्ट पॉइंट आउट अ कपल ऑफ थिंग्स. I feel again वही है कि Too many stimuli. Distractions. distractions Too many भी stimuli. है, you Yeah, need yeah, to yeah. be updated because Hmm. you know आपके पास AI तो है अपडेट करने के लिए आपको, but you Right. need to stay updated as well, so you need to pay attention to many things all together. So I think वही होगा. Too many things happening basically. तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या देखो क्या नहीं. easily distracted. Also, you guys can gain information on one click. So we don't have that time to spend over lectures or, as you said, Exactly. we can get हाँ, अरे यार ये अच्छा पॉइंट है यार. एक मतलब lecture ये मैंने में नहीं नहीं. सोचा कि क्योंकि इतना सब करना है कि मैं एक चीज़ के लिए इतना टाइम दे ही नहीं सकता अभी. ये भी हो सकता है ना. मतलब एक Why lecture to के waste लिए- 1 hour? Exactly. एक लेक्चर के लिए 45 मिनट्स बैठने 45 का minutes तो to need one. कम है टाइम में बहुत ज़्यादा आपको करना है और कर सकते भी है. नहीं. Right. यार मुश्किल हो गया है. तो And हमारे करना जैसों पड़ के लिए रहा है. चैलेंज है. मतलब बिकॉज आई डू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड थिंग्स लाइक दैट. So if I have Gen Z audience, it's a challenge. How do I keep them Yeah, engaged 100%. for a longer time? It's a serious challenge now. I have to rethink, reconsider. क्या करें अभी? Good insight. चश्मा नया लिया है क्या? अच्छा लग रहा है. Thank you. हैंडसम है. यार लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से are you also facing challenges in relationship? Friendships भी बोलो या relationship. Going one step ahead of relationship. की And बात ही मत करो. so the point अभी से तो हम लोग क्या बोलते. So the point is, you know what happens because of again the same situation, the same I would say way of living now. कि everything is happening, too much happening, too little time, action packed life, too many stimuli, chaos, distractions. इसकी वजह से हो या whatever, I'm seeing that even in terms of friendship, many of the Gen Z folks, they don't have the same friends for a longer duration of time. They don't have the same relationship for a longer duration time. और अब हम लोगों की बात करोगे तो आपके पिताजी मेरे सालों से दोस्त है, अभी तक है. मतलब 30 35 40 साल से लोग चले आ रहे हैं, हमारी फ्रेंडशिप चली जा रही है. नाउ आई सी इन फ्यू मंथ्स और अ ईयर और सो without any issue the friendship is not Okay. I feel lasting. We all are friends since we were yeah. 3 years. Yeah, 3 years. 3 years So I old. don't. हाँ, No, मतलब no, no. 3-4 years. Three- old. yeah, yeah, मतलब बचपन से फ्रेंड हो तुम लोग. Yeah. Right. Wow. We have pictures of childhood. So you No, are no, no. exceptions. Like, My parents said I came to your on your first birthday. so we are. तो बहुत ही पुराने Yeah. बहुत पुराने. It Depends on the parenting also. हाँ, It depends on parenting. मतलब आ गया If हमारे someone's parents, हमारे ऊपर आ गया ना. ठीक है, आने दो, बोलो बोलो. if someone's parents हाँ. don't build relationships, हाँ. the child sees it and they try to maintain same thing. बात में बट तो वैसे था. भी आपके ऐसे कितने दोस्त हैं कि जो आपको जेन्युइनली पसंद है और 40 साल आपके साथ है. यार लेट्स नॉट गेट देयर. बहुत सारे ऐसे ही संभाले हैं. That's the thing. Like, I feel You are बहुत I सारे feel you are संभाले. wasting time on some people जो हम नहीं जो हम करते. नहीं करते. कि अगर Wow. if we- क्या So if we सॉलिड feel- इनसाइट दिया है बॉस. अरे This बाप रे person is क्या not इनसाइट right. दिया है. We don't go back to that person. शो. we हाँ were- बोल दिस इज गुड पॉइंट. कंटिन्यू. If we feel हाँ. that this is not the right person or this person is not that Basically good worth our or time. worth our time, we don't go back to them. सीधा. बट डू यू दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली राइट. नाउ कम टू थिंक ऑफ इट, आई हैव सो मेनी पीपल, नॉट सो मेनी बट अ फ्यू पीपल, जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ मैं सोचता हूँ ये मेरा दोस्त इतने साल से क्यों है. एंड आई डोंट हैव अ वेरी वैलिड रीजन टू दैट. सो प्रॉबली इफ यू आर मी यू वुड हैव नॉट हैड द सेम रिलेशनशिप फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. Right. तो आप कैसे इस रिलेशनशिप को एंड करते हो और कंटिन्यू नहीं करते? मतलब हाउ इज इट? हम लोगों से तो नहीं बोला ही नहीं जाता. मे बी सिंस पेरेंट्स से शुरुआत है, Ghost. हम अपने पेरेंट्स को बोल Ghost कर देते हैं. पेरेंट्स को हाँ घोस्टिंग. अरे ये भी एक जेनजी वर्ड है ना, घोस्टिंग. अभी आया है ये. एंड इट्स रियल गाइस, यू गाइस डू घोस्ट. तभी मेरे मैसेजेस तुम लोग जवाब नहीं दे रहे थे क्या? बट आई थिंक इट्स अ गुड वे ना कि ज़्यादा लफड़ा ही नहीं चाहिए, अब जस्ट घोस्ट कर दो.
वो सामने वाला समझ जाता है क्या घोस्ट करने I का? feel समझ जाता है सामने वाला? दोनों में स्पार्क नहीं रहेगा ना, और तो इट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. wise words Between at two young age. ऐसे So I spark feel नहीं होता, you guys just ghost. Gen Zs are more detached. हाँ, वो तो है. अरे वो तो एक्सपर्ट है आप लोग, वो तो जमता है आपको. You are really We practice very detachment nicely easily. detached. हाँ, तुम लोग मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे ही पैदा हुए हो. But You are practicing detachment. again ऐसा उसका ये मतलब नहीं कि we don't have like true long lasting relationships. So you guys do. Yeah. You guys mean not individually. Your generation. Gen Z, Yeah. You do have meaningful relations as Yeah. well. But are they like long term relationships? Yeah. Do they last Some of long? them. They do. मतलब तुम लोगों की तो दोस्ती है that I can see. But I have not seen too many like you guys, honestly. मतलब I've seen, maybe I haven't seen too many Gen Zs, but जितने मैंने देखे हैं ना, उसमें सबके लॉन्ग टर्म रिलेशन वाले कम ही देखे मैंने. ज़्यादा ट्रेंड ऐसे है कि दे हिट ऑफ वेल. इवन फ्रेंडशिप, हाँ, आई एम नॉट अबाउट रिलेशनशिप, मतलब वो वाला लव वाला रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं. सो दे हिट ऑफ वेल, शुरू में अच्छे होते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, और धीरे 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 वो ग्राफ आ जाके फिर उतर जाता है और फिर ख़त्म ही हो जाता है. हमारे साथ भी ऐसे होता था कि इनिशियली व्हेन यू मीट समवन न्यू, यू आर एक्साइटेड, नया नया नया, फिर वो ऊपर जाता है, धीरे धीरे कम होता है, बट वो ख़त्म नहीं होता था हमारे यहाँ, वो उस लेवल पे चलते रहता था. बट इन दिस करंट थिंग आई हैव सीन कि वो रुक ही जाता है. एंड मे बी यू गेव मी अ वेरी गुड इंसाइट विच इज़ कि प्रॉबली वी डोंट नो हाउ टू से नो, and probably we need to be aware that is it worth spending that time with Your a person time, yes. when there is no spark left, when there is nothing mutually beneficial, whatever, जो हमने कभी सोचा ही नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग है दोस्त तो चलते रहो, आगे का सोचने का टाइम ही नहीं है. बट इंसाइटफुल है बॉस, इतने यंग एज में इतने इंसाइट्स आ गए तुमने. सो ये पॉइंट मैं सोचूंगा, Experience. मैं इस पर सोचूंगा. हाँ बेटा, आगे जा, थोड़ा आगे जा, जिंदगी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस देती है. ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड भी होता है ना तुम लोगों के साथ? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है ना कि अभी बहुत दिन हो गए मिला नहीं तो वो भूल ही गया उसको? Not really. नहीं होता तुम्हारे साथ? तुम्हारे दोस्तों के साथ Yes. होता है ना? मतलब अगर लाइक ऐसे बिलीव है मेरा तो कि आई फील कॉलेज में देयर वर लाइक कॉलेज में मेरे क्लोज फ्रेंड्स बने ऑब्वियसली, जिनके साथ मैं अभी भी रहती हूँ. स्कूल में भी बने जो अभी भी मेरे साथ टच में है प्रॉपरली. बट ऐसे भी थे कि जो लाइक दे वर नॉट रियली क्लोज टू मी, एंड वो उसी मतलब स्कूल में Timeline. रोज मिलते थे इसलिए साथ में थे. बट अभी नहीं है. ओके. सो आई फील वो कैटेगरी में आएंगे कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि अभी नहीं है वो मेरे साथ रोज. बट यू नेवर रियली हैड अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद देम एनीवे, इसलिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. या लाइक That's what you're saying? कंपैरिजन में जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे उनके जितना नहीं था उनके So साथ. suppose Sam and you are really good friends now. Yeah. So if you don't meet Sam for 15 days, भूल जाओगे उसको? मतलब भूल नहीं जाओगे पूरी, बट will you be like okay ठीक है, अब मैसेज नहीं होता, फोन नहीं होता, रोज नहीं मिलते, बट ऑब्वियसली वी आर इन टच. ऐसे so you still have that understanding and spark. We still have that. तो आज का बज़वर्ड है स्पार्क. ठीक है, स्पार्क. So it's so the way I understand it, it's not basically out of sight out of mind just because you're not seeing each other, but if there was a meaningful relationship in the first place, then it doesn't matter. Even if you're out of sight, you won't be out of mind. Yeah. That's what you're trying to say, ना? सोचने की बात है यार. मुझे तो लगता था कि ऐसे ही, मतलब इवन अच्छा रिलेशन है तो भी आउट ऑफ साइट हो गया तो चलो टाटा बाय बाय. पर यू गाइज ऑल्सो डोंट लाइक टू बी पेस्टर्ड ना, मतलब कोई पीछे पड़ा है तुम लोगों से, हमेशा मैसेज कर रहा है, अच्छा लगता है तुम लोग? In what way? Can you elaborate? सपोज दो लोग हैं एंड वन पर्सन इज ट्राइंग टू हार्ड टू गेट इन टच, टू स्टे इन टच. With us? हाँ, वो दोनों जेंजी है, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आई मीन अगर लाइक आई फील उसके साथ प्रॉब्लम होगा कुछ, देन आई ट्राई टू लाइक Okay. हाँ ghost So if you don't like that particular Yeah. person, you'll still हाँ. okay. But ठीक ठाक है, न्यूट्रल लेवल पे है तो क्या करोगे? We'll continue the relation. चल रहा है, चलने दो, जितना चल रहा चले, है. जितना हो सके उतना करूँगा. जैसे I'm आपका fine, होता था. call मत करो. आपके टाइम जैसे होता था. हमारे ज़माने में Yeah, वैसे. ठीक है बेटे, इवेंचुअली हमारे ज़माने में ही सब एक्शन हुई है. इसलिए तो हमें पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? It's
very Yes, important. 100%. Because I think one thing we all need to understand is not all Gen Zs also behave in the same way. And I've seen Yeah, this. yeah. Now I've seen you. My daughter is also Gen Z now. Her, I've seen some of her friends, some of my students as well. तो Gen Z में भी एक बहुत wide spectrum है. Have you? Yeah, You yeah, agree to yeah. this? Yeah, we've seen है ना? people. एक कई Gen Zs are close to our generation in terms of Yeah. thinking, and there is another end of spectrum who are very different. First of all, I don't know whether we should really generalize generations like this. लेकिन कुछ similarities होती है, especially surroundings में, technology साथ में वगैरह है सबके इस चीज़ में, इसलिए we can roughly generalize. But this I have seen कि बहुत अलग अलग टाइप के Gen Zs है. Yeah. मतलब the way I'm looking at you, even my daughter, they are closer to our line of thinking actually, and that brings me to the point which you were mentioning कि maybe parenting has a big role to play in this, क्योंकि आपके parents कैसे deal करते हैं आपके Yes. साथ, उनकी सोच क्या है, how dominating they have been, how interfering they have been, उनके relationships कैसे हैं एक दूसरे के साथ और उनके, इसका फर्क पड़ता है. पड़ता है. पड़ता है. तो you have seen your 100%, friends or not friends but people around जो अलग अलग behave If your करते upbringing is not that good, हैं. you will be a bit arrogant, हम्म. or you'll what you मतलब वो say. कैटेगरी में आएंगे जो the person who is getting ghosted. तो उनको तुम लोग घोस्ट करोगे. ओके, गुड. पेरेंटिंग. एंड आई फील लाइक अभी एक चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द किड्स में मतलब जो जेन एक्स के किड्स है आर नाउ अडल्ट. हमारे बच्चे. हाँ, आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ मतलब यंग अडल्ट से हाँ, basically. हाँ, हम हाँ. सब अडल्ट हैं, हाँ. लाइक टीनेजर्स टू अडल्ट केस में है. करेक्ट. सो आई फील जेन एक्स को वो समझ नहीं आता कि अभी उनके Don't accept that बच्चे we are- नहीं Yeah. है. Selective, you call that selective Selective. adulting. ओहो, Yeah. ओहो, नेम कॉलिंग. ओके, Basically, ओके. तुम लोग अभी कुछ चीज कर रहे हैं, हम लोग बीच में आते हो. हाँ, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ज्यादा है. सो पेरेंट्स का इंटरफेरेंस ज़्यादा. क्यों चाहिए ना? आई मीन अभी आपका बच्चा बड़ा हो गया, वो कर सकता है, बट फिर भी नहीं. अगर वो कर सकता है, बराबर किया तो टोकना है, और गलत किया तो भी बोलना है, तो अभी बच्चा है. बराबर कर रहा है, उसे जानबूझकर टोकना है. क्यों? ओहो, जेब बात. इस पॉइंट पे ना एक मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन एक छोटा सा ना कॉफ़ी ब्रेक ले लेते हैं. Yes, मुझे एक 100%. सिप कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी. हाँ, थोड़ा कॉफ़ी देंगे मैम प्लीज़. इन्हें माचा चाहिए. अच्छा नहीं है क्या? अब जो है वो मिलेगा, इसमें चॉइस, यू डोंट हैव टू मच चॉइस हियर. नेवर डिड आई डिजर्व कॉफ़ी सो मच. तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इंटरफियरेंस, राइट, एंड ऑल्सो सिलेक्टिवली फ्रीडम दिया जाता है. एंड जनरली जेन एक्स पेरेंटिंग इज़ लाइक आपने कुछ अच्छा किया तो भी नॉट वेल अप्रिशिएटेड, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, और बुरा किया तो डेफिनेटली बोला था ना पहले ऐसे मत कर. मे बी what you're saying, maybe there's a truth in that, and I think that could also come from the experience of Gen X, right? क्योंकि when we were kids we did not get so much of hand holding. ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अलग लेवल के थे. सो टिपिकली फादर इज़ वर्किंग, मदर इज़ एट होम, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन एट होम. तो जनरली मदर हैज़ बीन विथ अस फॉर अ लॉन्गर टाइम, फादर डैडी आते थे कभी कम टाइम पे. तो वी ग्रू अप इन अ डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरनमेंट, और हमें लगता था कि जो वॉट एवर वी मिस्ड प्रॉबली वी नीड टू गिव देम. जो हमें चाहिए वो सब देंगे हम. तो हमें लगता है कि यार मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने इतना सीखा है, आई हैव learnt it the hard way and I have a ready template, तो use my template and you can succeed using my template only. तो I think कहीं ना कहीं you're right कि in the back of our mind we should also look at कि it's your life now, the environment has changed, situation has changed, और जो हमारे लिए काम किया है that may not work for you, and if you don't make your own mistakes how will you learn? So I think somewhere in the back of mind we have to be conscious and mindful about this कि यार छोड़ दो इनको, थोड़ा सा गिरने दो, गिरते ही चोट लगेगी, उठ जाएंगे, सीखेंगे, वापस भागने लगेंगे. आई थिंक इट्स अ गुड लर्निंग फॉर अस एज वेल. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट आउट. बड़ा हो गया बच्चा.
कुछ ज़्यादा ही बच्चा हो गया, इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन लोग कहते हैं एस्थेटिक पार्ट है, ये ब्रांड वो ब्रांड, ये क्या नाटक है हमेशा? कितने पैसे उड़ा रहे हो हमारे। पैसों की तो बात मत करो, अच्छा बेटे, पैसों की बात आती है इवेंचुअली। हम पैसे बचाते नहीं है, खुद पे उड़ा रहे हैं। वाह। आई मीन हमें पसंद कमाना है, हाँ किसके लिए? खुद के बचा लिए। के करना क्या है? हाँ, ये भी ठीक है, मतलब इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू स्पेंड ऑन योर या सेल्फ, ठीक है। बट कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या एस्थेटिक्स का तुम लोगों का, यार ठीक ही है। ब्रांड अवेयरनेस ज़्यादा है ना, लेकिन है ना सैम? कितनी ब्रांडेड, हाउ मेनी ब्रांडेड क्लोथ्स एंड शूज एंड व्हाट सनग्लासेस यू हैव, फोन्स? सनग्लासेस, ओके, let's not start. Sunglasses out, cut. Clothes and all that. Many. तो कैसे आ गया ये ब्रांड अवेयरनेस आप लोगों में? आई मीन वी लाइक टू शॉप, बाय, लुक गुड। ओके, cool. पसंद है हमें अच्छा दिखना। अच्छा दिखना पसंद। Yeah. So you like to spend on yourselves, या which is fair. मतलब there's nothing wrong with that. बट आई मीन देयर इज जैसे अच्छा खासा जेंजी पॉपुलेशन जो सेव भी करता है। है? हाँ I don't know. मतलब I don't know that aspect, but I think possible, क्योंकि आजकल ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह चल रहा है, आई थिंक जेंजीज आर स्टार्टिंग एट अ यंगर एज। Yeah. आई थोड़ा बहुत एनेक्डोटल एविडेंस है मेरे पास कि कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे। SIPs, हाँ, ये बहुत हिट चल रहा है ना आप लोग, और यू आर इन द सेम फील्ड, सो यू वुड नो बेटर ऑफ कोर्स, बिकॉज हम लोगों ने बहुत लेट शुरू किया। सो मे बी दैट इज़ वन थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम अस, फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। यू स्टार्ट सेविंग अर्लियर, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। सो यू मीन टू से यू आर इन्वेस्टिंग ऑल्सो एंड स्पेंडिंग ऑल्सो? या दोनों चल रहा है? या एंड आई मीन खुद पे पैसे खर्च करने के में बुराई क्या है? I mean, कुछ नहीं यार, करो यार, बिंदास कमाओ, खुद उड़ाओ। पे खर्चा करने, As long as you are also दूसरे पे saving a खर्चा part करने of it, से no? अच्छा As long as you are also saving a part of it. राइट या है ना? दूसरे पे खर्चा क्यों करे ना? मतलब if the person is worth it, Then we we will. don't think about that. But if the person is not worth it, we Whoa. don't spend. Yeah, how about parents? Hmm? How about parents? Parents? Spending on parents is okay? Yeah. Of course. We should. बच हाँ गए, करते हैं हम, बच गए। पेरेंट्स भी तो स्पेंड करते हैं यार आप पे, इसलिए तो है हम ना? करते हैं ना। हाँ, इसलिए तो हम इतना किया आपने हमारे लिए। अरे वाह वाह, क्या बात। दिल गार्डन हो गया। अभी मैं 10 मिनट में रो पड़ने वाला हूँ आई थिंक। बट या आई थिंक दिस इज फेयर दैट इफ यू आर अर्निंग, व्हाई डू यू अर्न? You earn To for spend. yourself and you earn for your loved ones, है ना, the real ones. तो ठीक है, you spend on yourself, you spend on them and you save a part of it. This is fair. But हाँ, brand awareness थोड़ा है, हमारे में भी है, थोड़ा सा हो गया बाद में. But you guys, you are brought up on that ना, तो ठीक है. आपकी शुरुआत ही यहाँ से हुई है, तो आप उसके आगे ही जाओगे. हम लोग यहाँ से शुरू किया ना, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा वहाँ आने तक. But fair enough. Yeah. I'll give it to you. ठीक है, no problem. क्या मुझे कुछ पूछेगा? पूछ। वैसे हमारे लिए क्वेश्चंस तो कम ही है, वी आर लाइक ऑलमोस्ट द परफेक्ट जनरेशन। क्या ही पूछोगे? काहीतरी आठवत होतं पण नाही, यू गाइज आर जस्ट टू गुड मॅन. हाऊ मच आई एम एंजॉयिंग दिस. आई फील हाँ आईला सापडला, मिल गया इसको कुछ. हाँ बोलो. Gen X को यूजुअली बहुत ऐसे हाई एक्सपेक्टेशंस expectations. होते हैं, Ooh, तो लाइक क्या है मतलब क्यों होते हैं? क्यों? आई मीन अच्छा तो कर रहे हैं, इतना भी क्यों पुश करना है? Okay. Just a quick question before I answer that. Is having high expectation good or bad? आई मीन प्रेशराइज Okay. होता है थोड़ा, मतलब एक बलून को फोड़ना क्यों है? Neutral Limited चाहिए रखो। रे। कब तक प्रेशराइज कर? That's your point. How high is the question? You should be neutral in that case. Okay, let me answer it very honestly, candidly. ठीक है? Is it possible to have zero expectations from any of your No. real good relationship? No. नहीं, right? So expectations तो होने ही है. Period. अब वो low high है, ये कौन डिसाइड करेगा? That's the second question. But you think, I mean, जिसके तरफ से हमें एक्सपेक्टेशन होते हैं उसको लगता है ज़्यादा है, जिसको होती है वो बोलता है यार मैं तो इतनी सी तो एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ. सो आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ मिसमैच बिटवीन व्हाट आई फील
as what I'm expecting from you and what you feel as what I am expecting from you, right? Yeah. तो ये एक चीज़ है. दूसरी ना, I've seen many of my friends, हमारे जनरेशन के लोग हैं ना, उन्होंने ना अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है. And when I say invest, it's not just money. When I say invest, it's about time, mind space, more importantly. हमारी पूरी जिंदगी बच्चों के आसपास ही घूम रही है. So much so that we've started doing helicopter parenting. अब helicopter parenting क्या है कि बच्चे के आसपास ही आप घूम रहे हो. मतलब वो कहीं जा रहा है, पहुंच गया क्या, अच्छा पहुंच के मैसेज कर, निकल के मैसेज कर, दैट काइंड ऑफ स्टफ. लाइव लोकेशन. लाइव लोकेशन भेज, बच्चा गिरने से पहले खड़ा है उसको झेलने के लिए कि गिरे नहीं बच्चा. सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज फॉर सम रीजंस वी हैव बीन वेरी फोकस्ड ऑन द पेरेंटिंग पार्ट ऑफ इट. एक रीज़न ये है कि वी थिंक जो हमें नहीं मिला इनको थोड़ा करना चाहिए. अगेन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एटलीस्ट दे हैव जस्ट वन चाइल्ड इंक्लूडिंग मी, राइट? So एक ही है, so you put all your eggs in one basket. Yeah. So you just want to protect it, and you have a lot of, naturally you have more expectations from them. So I think this is one of the reasons why we have more expectations from our children. कि यार इनको क्या नहीं मिल रहा अभी, इनको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, जो ये चाहिए इनको मिल रहा है, इनको एक अलग सी रूम है. जो हमारे पूरे घर में 10 लोग रहते थे, इनको सेपरेट रूम है. इनको टेक्नोलॉजी है, इनको कार है, बाइक है, पैसे जो चाहिए. तो वाई आर दे नॉट परफॉर्मिंग टू व्हाट आई एक्सपेक्ट देम? दिस इज द माइंड सेट. आई एम नॉट सेइंग वेदर इट्स राइट और रॉन्ग. ओके, आई एम गिविंग यू द रीजन फॉर हैविंग हाई एक्सपेक्टेशंस probably. So this is where the expectations come from. I agree, sometimes it could be pressurizing the kids a bit too much, and that's where we also need to be mindful कि ठीक है यार सब है, लेकिन there is still a limit. राइट. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अब हम बोलते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम है ना, इतने पैसे है, इतने उनकी फैसिलिटी है, ये है वो है, फिर 100 और खेलते बैठो दिन भर, नहीं होगा ना. स्टिल यू हैव योर फिजिकल लिमिटेशन, उसके आगे नहीं जा पाओगे आप कितना भी करो. सो मे बी दैट्स अ लेसन दैट वी ऑल्सो नीड टू लर्न. Yeah. सो आई गॉट योर पॉइंट. Also, I think those who are listening to this, maybe it's about introspecting कि exactly where I am I expecting too much, is it pressurizing my kids? And if any Gen Zs are listening, I think they should also look at, give your parents a benefit of doubt. एक चीज़ तो सिंपल है कि whatever your I can say for most of the parents, whatever your parents are thinking or doing for you, the intention is not wrong. The method may be inaccurate, the method may be something which is questionable to you, लेकिन इंटेंशन तो अच्छा ही है कि मेरे बच्चे ने कुछ अच्छा करना चाहिए. सो गिव देम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट. एनीवन हु इज इन दैट एज ब्रैकेट, मे बी दिस इज समथिंग वी कैन ऑल थिंक, राइट? थोड़ा सीरियस हो गया, बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ अ गुड मैसेज फॉर बोथ द जनरेशन्स कि आप लोग ये सोचो कि वाई दे आर डूइंग इट, और हमारे जैसे जो पेरेंट्स हैं, वी नीड टू थिंक कि कहीं हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो. सो बोथ वे थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, है ना? गुड पॉइंट मैन. तुम लोग की एक चीज़ मैं अच्छी चीज़ पॉइंट आउट करूँगा. अभी आई हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड क्रिटिसाइज्ड अ लिटिल बिट, बट वन थिंग आई रियली अप्रिशिएट अबाउट यू गाइज इज you guys really invest on self development and boundaries, right? जो I think it came up in our previous discussion, जो you were saying कि if we feel कि there is no spark left, we just shut off, we just disconnect, detach. तो ये अच्छी चीज़ है. हाउ डू यू मैनेज दैट यार? इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे कि दिस सेल्फ डेवलपमेंट ये कहाँ से आया? पहले तो आप में, हमारे में क्यों नहीं है ये? एक्सपीरियंस. हमसे सीखा क्या? मतलब हमारे नहीं, गलती से नहीं? खुद से सीखा ना. ओके. आपने गिरने दिया, हाँ. इसलिए हम गिरे, हाँ. उठे और सीखे. तो नाउ यू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, है ना, बाउंड्री. बाउंड्री. एंड आई फील ऐसे जितने जेंजीज मुझे पता है कि जेंजी इज अ सोबर जनरेशन इज व्हाट आई फील. मिलेनियल्स या फिर जेन एक्स, आई डोंट नो, बट मिलेनियल्स से तो सोबर है. लाइक वी प्रमोट अच्छा खाना, लाइक क्लीन ईटिंग हैबिट्स, योगा, Diet. meditation. So you have good habits and you're We are like aware of your development and what you need Self for your health. we give importance to mental health.
हाँ But ये we तो are अच्छा the एक one who are suffering from it the most. ये अच्छा पेंडोरास बॉक्स खोल दिया मेंटल हेल्थ। आजकल हर कोई मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है ना, थेरेपी, मेंटल हेल्थ, ये Yeah. बहुत कॉमन हो रहा है। हमारे यहाँ तो ये वर्ड ही नहीं था, मतलब वी ग्रू अप विदाउट दिस वर्ड एक्चुअली। और थेरेपी मतलब हमें कोई बोलता है थेरेपी मतलब पागल सीधा, yeah. कोई बीच में था ही नहीं स्टेप, या तो एब्सोल्युटली नॉर्मल या पागल, बीच में कुछ नहीं था हमारे में। बट नाउ आई थिंक यू गाइस हैव टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल ना, Yeah. कि यू हैव mental health is very important and you have to protect your mental health. Depression एक word मुझे some थोड़ा सा, go into this is where there is a little bit of disconnect in my mind. I think currently depression is a word which is thrown very loosely, ऐसे मुझे लगता है, I may be wrong. But do you guys feel कि कुछ भी हुआ तो मैं depressed हूँ ऐसे करके बैठते हो आप लोग? Don't take it personally. Generally आपके आसपास जो हो रहा है वो देख लो, होता है कभी कभी यार मैं डिप्रेस्ड हो गया, मैं डिप्रेशन में हूँ। एक्चुअली क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ अ वेरी इट्स अ सीरियस टर्म, और इतना लूजली नहीं फ्लोट करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। डिप्रेशन क्यों? हम्म, चीज़ें बहुत है ना करने के लिए। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू। राइट। समटाइम्स pressure, mental pressure करेक्ट। gets more higher and then we get a bit low, not depressed. I call it low. हाँ, दिस आई एग्री एंड दिस इज व्हाट आई कीप सेइंग कि यार तुम लोग सीधा डिप्रेशन में मत जाओ ना, ये वर्ड इतना इजीली मत यूज़ करो कि या मूड अप एंड डाउन होता है, समटाइम्स यू फील लो, दिस इज नॉर्मल विच हैपन्स टू एवरीवन एंड आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड टू यूज। Yeah, low. डिप्रेशन यू यूज व्हेन इट इज एक्चुअली अ क्लिनिकल डिप्रेशन, मतलब उसके भी स्टेजेस है। अभी अभी सीख रहा हूँ, हमारी हीरोइन साइकोलॉजी कर रही है इसलिए थोड़े से वर्ड सीख रहा हूँ मैं, बट आई थिंक थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए बिफोर वी यूज द Yeah. वर्ड डिप्रेशन, राइट? तो फीलिंग लो इज़ अ नॉर्मल, मतलब डे टू डे में भी कभी लो फील होता है, कभी अच्छा, विच इज़ ओके। एंड Also, you guys should not judge us if we say we are low हाँ or हाँ we हाँ are a हाँ, bit stressed out. You guys judge us more quickly on that वो thing. तो हमारी थोड़ी सी जजमेंटल है ना, हम लोग थोड़े से हो गए जजमेंटल, थोड़ी ज़्यादा जिंदगी जी ली है तो जज कर लेते इमीजिएटली। बट या थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, थोड़ा लेट को करना Yeah. चाहिए कि ठीक है, नहीं है उसका अच्छा मूड तो छोड़ दो, विल कम बैक, और वो अपने आप ठीक हो और जाता है क्या तुम लोग? You guys can help us out. हाँ, कैसे? गुड पॉइंट, कैसे? बात करके, पूछ के. ओके ओके, मतलब if a person shares his problem or his issues हाँ हाँ हाँ, with parents or with anyone, any राइट person, राइट, he can help him out by giving some टिप्स, tips or एटलीस्ट लिसनिंग listening or Without also judging. by passing his time ओके, or diverting his mind for a उससे थोड़ा सा फोकस हटा के। focus हटा के. अच्छा पॉइंट है। ओके, दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन, नाउ दिस इज इंडिविजुअली टू ईच वन ऑफ यू। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। सपोज यू आर नॉट इन द गुड मूड राइट नाउ, सैम, एंड आई एम योर फादर, यू आर नॉट इन अ गुड मूड, हाउ डू यू वांट मी टू डील विथ यू एट दिस पर्टिकुलर टाइम? मैं क्या करूँ? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेनी पेरेंट्स डोंट नो, आई हैव सीन दिस, देयर इंटेंशन इज राइट कि उनको ये चाहिए कि आई वॉन्ट टू मेक यू फील बेटर नाउ सो दैट यू बिकम नॉर्मल एज सुन एज पॉसिबल, दैट इज द इंटेंशन। लेकिन वो जो रास्ता है ना, वो हमेशा गलत ही लेते हैं। क्या हुआ है? हाँ, कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है, या राइट, ऐसे होता है। या फिर सपोज गिव यू एन एग्जाम्पल, यू मे वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन राइट नाउ, आई वॉन्ट टू जस्ट बी लेफ्ट अलोन, मैं अपना म्यूजिक सुनूंगी, इन हाफ एन आवर आई बी फाइन, राइट? तो उसी वक्त, उसी आधे घंटे में ही जाके बैठे, काय झालं सांग ना, पता ना यार क्या हुआ, तो टेल मी, एंड समटाइम्स यू डोंट लाइक दैट ईदर, राइट? सो हाउ डू यू लाइक टू बी डेल्ट विथ इन दिस सिचुएशन? तीनों का अलग अलग होगा आई फील, बता दो, थोड़ा सा सोच के बता दो क्या करें। तो यू स्टार्ट सर्वेश। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन माय मूड. करेक्ट, So being left out or being alone is very bad, I feel. यू डोंट लाइक दैट Yeah. पार्ट, ओके, गुड यू Because मेंशन, if I क्योंकि काफी लोगों को नहीं अच्छा लगता, काफी लोगों को लगता Yeah. है, सो यू लाइक नहीं, because be- if I sit alone there will be more thoughts.
there Correct. will be more thoughts, हाँ पॉसिबल, and that could make me feel more low. So बिल्कुल I don't personally, राइट. सो व्हेन यू आर फीलिंग लो you don't want to be left alone. yeah, Or else he might go You want out. someone to yeah, talk to. yeah, or कुछ ना कुछ. I'll go to my friends, or I'll go. So दोस्तों का मिलो, yeah, I'll टाइम have पास some करो, conversation. हंसो, गालियाँ Yeah, दो, yeah, खत्म yeah. बात, है ना? No, गालियाँ नहीं. गालियाँ नहीं. तो कुछ तो बकवास करो, खत्म, है ना? ओके, सो फेयर, काफी लोगों का वो है. Yeah. सिया, व्हाट, हाउ डज मतलब Generally. I personally like to be left alone. यू ऐसी लाइक टू बी लेफ्ट situation ऑन? में. हाँ, अगर- सी एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना? हाँ मतलब मुझे मेरे रूम में जाने दो, लेट मी वॉच एक दो कोई तो लेटेस्ट सीरीज के एपिसोड. So some distraction. हाँ. So you just get your mind off that particular issue. Sam? I might not talk to anyone that time. Yeah, but then. So you also want to be left alone for some Yeah. time. तो दोनों लड़कियों को left alone, दोनों लड़का don't want to be left alone. Interesting. I think it's very personal. If you ask me, I also like to be left alone. And I recover on my own. मतलब कहीं बाहर जाऊँगा, walk करूँगा, गाना सुनूँगा, खत्म बात 10-15 मिनट में. Time on. But this is a very important point I feel. See, same situation है, exact opposite treatment है यार. And if as parents we don't understand this, imagine the outcome. If I do exactly opposite with these two people, उसको जो situation है वो और खराब ही होते जाएगा ना. So very good insight came out of this. फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स को पता है ये बात. Now they know that you like to be left alone, right? Good. गुड. So they leave you alone for some time. हाँ. Awesome. तो सिम ना मैं तो कुछ होने नहीं देता. उस सिचुएशन में ही नहीं जाना है क्या? दूर से कल्टी मार लो. गुड गुड यार, इंटरेस्टिंग. काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले मुझे. सी इमेजिन बिफोर टॉकिंग टू यू गाइज, इवन आई हैड सम अदर, आई वुड से थॉट्स और नॉट एक्सपेक्टेशन बट क्या बोलते हैं, प्री कंसीव नोशंस बोलते हैं ना अबाउट जेन जी. बट आई थिंक माई ओन थॉट्स आर डिफरेंट नाउ, क्लैरिफाइड, some myths are busted. And also I understood a little bit more about you guys जो था उसके पहले. तो नाउ आई नो कि क्यों ऐसे है, एंड यू नो जो मुझे लगता था वैसे नहीं है. दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज थिंकिंग. नाउ दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट नाउ कि वी नो दैट जनरेशंस आर डिफरेंट, राइट? एज इज डिफरेंट, एनवायरनमेंट इज डिफरेंट, सम क्वालिटीज आर डिफरेंट, but eventually we are all human beings, and you cannot really have, you know, just one, you can't paint everything with the same stroke. Correct? तो Gen Z में भी अलग अलग है, हमारे जनरेशन में भी अलग अलग लोग हैं. तो लेट्स बी माइंडफुल Yeah. टू दैट Yeah. पार्ट कि एक जनरेशन को स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट करना चाहिए. Yeah. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट एंड अ गुड टेक अवे फॉर ऑल ऑफ अस, Yeah. राइट? तो जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, स्पेशली द यंगस्टर्स एंड ऑल्सो देयर पेरेंट्स, राइट? Yeah. एक और एक चीज़ मुझे बात करनी थी कि गोइंग फॉरवर्ड नाउ, स्पेशली फॉर यू गाइज, आप अभी अपना करियर जस्ट शुरू कर रहे हो, राइट? टेक्नोलॉजी सबको इक्वल है, AI सबके लिए आ रहा है, तो एक्सपोजर तो सिमिलर है सब लोगों को, वहाँ आपको कोई एज नहीं है, करेक्ट? जो मुझे मिलने वाला है वही आपको मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड रिसोर्सेज. सो ये मैं हमेशा सोचता हूँ कि हाउ कैन यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड विच यू वर सेइंग, कि मैं अलग कैसे रहूँगा? आई फील अभी जितना हम लाइक कॉन्वर्सेशन स्किल्स जो भी है, बिकॉज दैट AI can't replace you in point. conversations. Like building relationships. AI can't build relationships. I feel वो एक Definitely. edge रह सकता है कि how friendly you can get with people, how can you build trust with someone. So I feel सो कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन स्किल्स, बिल्डिंग Building रिलेशनशिप. relationships. और yeah. कुछ तुम लोगों को लगता है जो AI नहीं करेगा, और दैट्स वेयर यू कैन हैव, यू नो, सर्वेश एज अ ब्रांड, और सैम एज अ ब्रांड, और सिया एज अ ब्रांड. ये ज़रूरी है क्योंकि ये वही आगे जाएगा. अभी जो AI जो नहीं कर पाया वो करेगा ना, वही आगे जाएगा. नहीं तो AI इज गोइंग टू टेक Hey, एक चीज डू ऑल द सेम. हाँ बोल 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 शेर बोल मेरे चीते. नहीं बोलेगा, ठीक है बाद में बोल.
कमेंट में बोल दूसरे आईडी से डीएम करूंगा पर डीएम हाँ ये भी है ना, फेस टू फेस से ज़्यादा डीएम इज, यू गाइस आर मोर फ्रेंडली विद दैट. और कुछ लगता है क्या तुम लोग? आई थिंक अ कपल ऑफ पॉइंट्स. एक तो व्हाट यू सेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू मेक पीपल फील, इसका कोई चैलेंज ही नहीं है और इसका कोई इसको रिप्लिकेट नहीं कर सकता. एंड आई थिंक दैट इज़ योर इंडिविजुअल स्टैम्प कि हाउ डू आई मेक यू फील व्हेन वी आर टुगेदर. या दैट मेक्स ये एक पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, मतलब आप इन द सेंस पीपल ऑफ योर एज. और एक चीज़ है जो मुझे बहुत मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट मेनी पीपल अंडरस्टैंड दिस, इज सेंस ऑफ ह्यूमर. इफ़ यू हैव द सेंस ऑफ ह्यूमर it can diffuse a lot of situations, lot of tricky situations, lot of serious situations. और आपको काफ़ी सारे सिचुएशन में से मतलब यू कैन कल्टी मार के निकल लोगे पतली गली से इफ यू हैव द राइट सेंस ऑफ ह्यूमर. और ये चीज़ एक कोई नहीं कर सकता, ये एक रेप्लिकेट नहीं होने वाली एआई से. सो आई थिंक दीज आर वेरी वैलिड पॉइंट्स. सो कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, trust and relationship and trust building, sense of humor, and eventually how you make someone feel. All these things eventually boil down to how you make someone feel. इस पे अगर आप ध्यान दोगे तो I think that's where you can have your own stamp and your own authority. So I think that was what I wanted to discuss with you guys. I'm amazed to see the level of intellect and the thought process. मुझे नहीं लगा था, honestly मुझे नहीं लगा था इतने डेप्थ में होगा ये. But I think we actually touched upon quite an interesting and insightful conversation, right? This has been really absorbing, huh? I learned a lot of new things and maybe more than what I expected, to be very honest with you, okay? So now what we'll do is, this is almost like the end of the session, this particular discussion. I'll give you maybe few seconds to think, to have your thoughts aligned, and just give us one closing remark, one message, either for your own generation or for my generation, whatever, one message you want to give. So just take a few seconds to have your thoughts aligned. और बता दो, this is your opportunity. I feel Gen Z is a very technical term. Like if you're born in from this to this years, you are a Gen Z. So Right. I feel it's not okay to label an individual as you're Gen Z. तुम तो ऐसे ही हो गए. So I mean, let us be the way we are. हम भी like इंसान हैं and we have our own likings and dislikes. So I feel it's not like a Gen Z trait. It's It's an individual. So trait. treat us as individuals and not like a part of a generation. Correct? Good. Sarvesh. I want to add that we are good at our things, you are good at your things. So don't judge quickly. Your time was different, our time is different. We are performing at high paced generation, Correct. high paced life we have. Your time was different, you were a bit Slow. and you had lesser competition compared to our generation. ठीक है. That's what So I wanted to say. So you want us not to judge you or just because you are part of a generation. Rather, it should be what you achieve and what Yeah, kind of yeah. things, what kind of stuff you do, right? You Yeah. should be judged against that. यही है ना point. Fair. Sam. I feel we already have self-imposed pressure. So please don't pressurize on us. Just trust. Okay. And yeah. So too much additional pressure unnecessary. So you just need to be, let go of you. Yeah. और तुम लोग कर लोगे ना manage. Yeah. हाँ? We should trust you, ना that much. Of Or course. just trust. We do. And at least we'll try to do, right? So I think this was cool, man. Very interesting insights, very useful, I feel, for both generations. I mean, Yeah. we understood your point of view better. क्योंकि अब तक क्या था कि ये ऐसे ही है. No one really tries to look at why they're behaving in a particular way. But I think it was quite insightful, क्योंकि इतने ज़्यादा information है, distractions है, social media है, वहाँ पर trolling इतनी है, तो mental health पे affect पड़ सकता है, effect हो सकता है, all those things. So that part. From our side, I think you also need to understand, which is the current young generation. I will not say Gen Z, etc. But the next generation, they also need to understand that why we are doing
a particular thing, or why are we asking you particular questions? They are not because we don't trust you, but because we want you to be safe. We want to see whether you are on the right path or not. Things like that. We also feel कि हम लोगों ने जो गलतियाँ की ये उन्होंने ये गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए. They can make new mistakes, right? Because we know what's going to happen if you walk down this particular path. So we come from that experience. कि we already seen this. Why is he doing the same thing again? That kind of thought process. Also, more protective in nature. हम लोगों को लगता है यार एक ही बच्चा है उसको अच्छे से संभाल के रखेंगे. Wrapped in cotton wool बोलते हैं ना, वो kind of situation. While we also need to understand कि हमने अगर ऐसे ही किया तो वो कब सीखेगा. Hardships उसको भी तो फेस करनी होगी, क्योंकि ज़िंदगी ये सब नहीं देखती ना, कौन प्रोटेक्टेड है कौन प्रोटेक्टेड नहीं है. लाइफ विल टीच इट्स ओन लेसन्स एनीवे. सो आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे नीड टू बी, यू गाइज नीड टू बी लेट फ्री so that you experience your own life, and you fall, you get up, you learn, right? Awesome. Thank you so much, guys. Thank you. It's lovely to have you, and I'll keep talking to you on such issues every now and then. If I have any doubt, I'll call you. You guys are my helpline when it comes to Gen Z. Yeah. Yes, So thank you very much. 100%. Right. Thank you for Thank you for having us. thank you for hosting. So we have Sia, we have Sarvesh, we have Samiksha signing off from this particular episode, Gen Z versus Gen X.